suppose any non-empty set is given to us, any non-empty set, X is any non-empty set. Okay, now look at its power set. Look at its power set. Power set, collection of all subsets of X. And from this power set, let us take any collection. Let us take any collection, any subset. Now we will claim that that subset will be a topology if it satisfies the following condition. What are those conditions? That X and phi must be from script T. See, somewhere it is read as tau, or you can read it as script T. Script T. So a class script T of subsets of X is a topology on X if and only if script T satisfies the following axioms. What are those axioms? Axioms means the rules based on which we are going to do our reasoning, our discussion. Okay, so that X and the full space X and full set X and phi must belongs to script T. Union of any members of sets in this tau belongs to tau. The intersection of any two sets in tau belongs to tau. Okay, now look here, the union. On union, there is no restriction. I mean, it can be, this one is arbitrary. This one is arbitrary. I mean, it can be countable, it can be uncountable. So on union, there is no restriction. However, in case of intersection, we need to take case of finite only. Finite only. So once it forms, that collection, the subsets of power sets of X satisfies the following condition, then we will call this as topology. Topology on X. Topology on X. ठीक है ना? तो सिंपली क्या किया, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है, उसका पावर सेट बनाया, पावर सेट से कुछ सेट्स का कलेक्शन ले लिया, और अगर वो सेट ये कंडीशन तीनों फुलफिल करते हैं तो हम उस कलेक्शन को स्क्रिप्ट टी को क्या कहेंगे, टोपोलॉजी ऑन सेट एक्स, एंड एक्स टुगेदर विथ दिस स्क्रिप्ट टी इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस। और एक बार ये टोपोलॉजी हो गया तो उसके हर एक मेंबर को हम ओपन सेट कहेंगे। कुछ लोग इसे स्क्रिप्ट टी ओपन सेट कहते हैं, या टाउ ओपन सेट्स, या सिंपली ओपन सेट्स। Once it forms a topology, then we will call its member as open set. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये देखो, जैसे एग्जांपल 1.2, कंसीडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। देखो ये इसमें टोटल 1 2 3 4 5 है, तो इसके पावर सेट की अगर मैं बात करूं, पावर सेट में 2 to the power 5 32, ठीक है ना? या तो हमने ये 5 ले लिया, उसमें ये x ले लिया, ये सारे सिंगलेटन्स के केस बनेंगे, फिर दो के केस बनेंगे, है ना? जैसे आप अब यहाँ पे स्पेस नहीं, मैं लिख नहीं सकता, फिर ऐसे ए बी वाले आएंगे, तो आप ऐसे टोटल कितने केसेस बनेंगे? हर एलिमेंट के पास दो चॉइस है, या तो मैं इसमें इंक्लूड करूं या ना करूं। सो देयर विल बी टोटल 32। नाउ फ्रॉम दिस पावर सेट लेट मी टेक दिस कलेक्शन टाउ 1। मैंने यहाँ से x उठा लिया, 5 उठा लिया, सिंगलेटन ए ले लिया, और इसी तरह कहीं सी डी आएगा, ए सी डी आएगा, बी सी डी। तो इसके टाउ 1 के देखो हर एक मेंबर, टाउ 1 के हर एक मेंबर क्या है? एक्स का सबसेट है ना। जैसे एक्स, ये सब सबसेट्स ही तो है, इसके पावर सेट्स ऑफ एक्स के मेंबर क्या है? सबसेट्स ऑफ एक्स, इज इट? यस सर, सबसेट्स हैं। तो अब ये कलेक्शन उड़ लिया हमने, टाउ 1 जो है इसके पावर सेट से कलेक्शन लिया। मुझे ये क्लेम करना whether this tau 1, whether this collection is a topology or not. So if tau 1 is a topology, script tau 1, script t1, or read it as tau 1, if it is a topology, then it must satisfy the following conditions. What are the first those conditions? X and phi must be there. Now look, X and phi is already there. Topology तो बिना X और phi के होगा नहीं, so by default X and phi has to be present everywhere. Now you need to look that union of any number of sets in स्क्रिप्ट टी अगेन शुड बी इन टी। अब इनके यूनियंस देखो, जैसे ए सी और डी का अगर आप इसका और इसका यूनियन देखो तो क्या आ जाएगा? ए सी डी, और दोबारा वो ए सी डी देखो T1 में है ना? सी डी और ए सी डी का यूनियन लोगे तो क्या आ जाएगा? अगेन ए सी डी, वो भी यहाँ पे है। तो इस तरह आपको सारे यूनियन चेक करने हैं। अब एक काम करो, ए और बी सी डी ई का यूनियन लो तो पूरा स्पेस एक्स हो जाएगा, वो भी यहाँ पे है, ठीक है? दूसरा देखो, tau 1, observe that T1 is a topology on X since it satisfies the necessary 3 axioms. इंटरसेक्शन वैसे फाइनाइट, आप इंटरसेक्शन देख लो तो A और CD का इंटरसेक्शन कितना होगा?
बताओ ए और सी डी का इंटरसेक्शन कितना होगा? 5 सर 5 होगा। 5. So 5 is already there. Now what will be intersection of these two? CD and ACD. Again CD. So CD is a member of T1. Again ACD and BCDE. इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? CD हाँ, वेरी गुड. ACD इंटरसेक्शन BCDE. ये इंटरसेक्शन जो हो गया वो आ गया CD. ठीक है ना? Now you can check that this their finite intersection is CD and this is again member of script T1. Is it? Script T1 के अंदर C और D है. So in this way you can check that this script T1 is going to form a topology on this set X. आगे समझो पहला. यस सर. तो आपको क्या करना है, कोई भी सेट दे रखा है, बेसिकली टोपोलॉजी कैसे बनाते हैं, आपने उसका पावर सेट बनाया, पावर सेट से कुछ कलेक्शन लिया, कोई सबसेट लिया, और वो सबसेट हम क्लेम करेंगे वेदर दैट इज अ टोपोलॉजी और नॉट. सो फॉर टोपोलॉजी it must satisfy all these three conditions. Now look at the second one. Is this second collection also topology on X? स्क्रिप्ट T2 देखो, तो स्क्रिप्ट T2 में क्या हुआ, स्क्रिप्ट T2 में क्या क्लेम है, स्क्रिप्ट T2 is not a topology. Why? Because union of ACD and BCD, ये देखो यहाँ पे ACD और BCD, इनका यूनियन जो लिया ना, वो क्या आ जाएगा ABCD, and this is not a member of T2. क्योंकि क्या कहता है, दो किसी भी यूनियन आप ले, चाहे आर्बिट्रेरी कोई भी यूनियन हो, वो अगेन उसी स्क्रिप्ट का मेंबर होना चाहिए ना, उसी सेट का मेंबर हो जिसको हम टोपोलॉजी क्लेम करना है. तो क्या, तो T2 टोपोलॉजी, एक भी कंडीशन फेल कर गया तो T2 टोपोलॉजी नहीं है. सो स्क्रिप्ट T2 इज नॉट अ टोपोलॉजी, whereas script T1 is a topology. Is it? यस सर. आप देखो व्हाट अबाउट स्क्रिप्ट T3? वो भी नहीं है. वो भी नहीं, क्यों? क्योंकि ACD और इसका ABD का इंटरसेक्शन AD है, और AD इज अगेन नॉट मेंबर ऑफ T3, है ना. इसके अंदर देखो कहीं भी A और D नहीं है. तो समझ में आ गया आप लोगों को बेसिक डेफिनेशन. नाउ अगेन रीड दिस वन. नाउ लुक बैक at this definition once again. X is any non-empty set. I am discussing on non-trivial cases. A class script T of subsets of X is a topology on X if and only if T script T satisfies the following axioms. X and phi belongs to T script T. Union of any number. This means that union can be arbitrary. That can be a union of finite. Of them can be union of infinite of them. Within infinite it can be countable, it can be uncountable union. So whatever be the union, by taking union again, that should be the member of script T. But in case of intersection, we need to look at finite cases. Intersection of finites, members of script T should be again in script T. So once it satisfies all the three axioms, we will call script T as topology. और एक बार टोपोलॉजी हो गया तो इसके मेंबर्स को हम ओपन सेट कहेंगे. जैसे देखो स्क्रिप्ट T1 क्या है, टोपोलॉजी. तो अब X भी ओपन कहलाएगा, फाई भी ओपन, सिंगलेटन ए भी ओपन सेट कहलाएगा, CD ये भी ओपन कहलाएगा, ACD भी ओपन, BCDE भी ओपन. ठीक है, एक बार टोपोलॉजी हो गया तो इसके हर एक मेंबर को हम क्या कहेंगे, ओपन सेट्स. सर हाँ, यहाँ पे ये एलिमेंट है T1 के, और फिर से सेकंड कंडीशन में यूनियन ऑफ नंबर ऑफ सेट्स बोल रहा है, तो सर ये एलिमेंट्स हैं T1 के. हाँ, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सेट्स. नहीं, ये एलिमेंट एक तरह का सेट ही तो है. ये जो मेंबर यहाँ पे क्या है, सेट ही तो है. फाई सेट है, X सेट है, सिंगलेटन ए सेट है. सो यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स इन स्क्रिप्ट T बिलोंग्स टू T. एक्चुअली ये जो आप इसके मेंबर्स है ना, पावर सेट ऑफ X के मेंबर क्या है, X के सबसेट भी तो हैं. अच्छा ये बताओ, सिंगलेटन ए, क्या सिंगलेटन ए सबसेट नहीं है इसका, ABCD का है. ABCD का है, लेकिन सर T1 का तो नहीं है. T1 का एलिमेंट है सर. अच्छा, मुझे आपके डाउट समझ गए. देखो यही मैं कह रहा था ना, आपने सही से सुना नहीं. मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे ये आपको एक सेट दे रखा है, इसका पावर सेट हमें मालूम है. अब पावर सेट से कुछ कलेक्शन उठाते हैं, पावर सेट का सबसेट लिया, उसे क्लेम करेंगे. पावर सेट तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स होता है ना, उसमें तो सब सारे सबसेट्स होंगे. ये जो
जिसको T1 स्क्रिप्ट T1 T2 T3 उठाते हैं, इसके मेंबर जो होते हैं ये पावर सेट का कोई सबसेट लेते हैं और फिर उसे क्लेम करते हैं वेदर दैट इज टोपोलॉजी और नॉट। देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, आपने कोई नॉन एम्प्टी सेट लिया, उसका पावर सेट बनाया और वहां से कोई कलेक्शन लिया, स्क्रिप्ट क्या है, उसका सबसेट है, या तो पूरा ले लिया या उनमें से कुछ ले लिया। So if this collection of subsets of power sets of X satisfies these three axioms, then we will call script T as a topology on X. देखो ये फर्क है, अगर यहाँ पे जैसे आप A लिखोगे तो आप लिखोगे A belongs to ABCD, ये यहाँ पे ध्यान देंगे ना, ABCD, ये तो एक मेंबर है इसका, लेकिन अगर ये मैं लिखूं तो ये सबसेट है, क्योंकि इसका मेंबर A है और A इसके अंदर भी है, तो ये इस तरह यहाँ पे सबसेट का नोटेशन होगा, और इस तरह लिखेंगे तो A बिलोंग्स टू ABCD। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर, समझ आ गया। है ना, वो जैसे क्वेश्चन ये है ना कि सर हम कैसे चेक करेंगे, मतलब बेसिक फॉर्मेशन क्या है, तो पहले आपको उसके जैसे उसका पावर सेट आपको मालूम है, उसमें से कुछ कलेक्शन उठा लिया और उन कलेक्शन को हम चेक करेंगे कि वो, अब वो आगे कभी क्वेश्चन देखेंगे, हो सकता है आपको कोई कलेक्शन दे रखा और आपको ये क्लेम वेरीफाई करना कि वो टोपोलॉजी है कि नहीं, लेकिन जो जनरल आइडिया जो है वो यहीं से आया। अच्छा, कुछ और एग्जांपल देखो, अभी समझ में आ जाएगा। सर ओपन सेट के बारे में बता दीजिए सर। ओपन सेट का एक बार टोपोलॉजी हो गया, उसके सारे मेंबर को ओपन सेट कहेंगे, ठीक सर उसका कार्डिनलिटी से कोई मतलब नहीं है सर। कोई ओपन मतलब सेट नहीं, कोई मतलब नहीं। अभी मैं आ रहा हूं, अभी तो मैं फाइनाइट केस से डील कर रहा हूं, अभी थोड़ा वेट करो, इसमें इनफाइनाइट सेट वो सारी कराऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में ये सब छोटी छोटी चीज क्यों बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो और किस तरह सोचना है ये आपको समझ में आए। अभी मैं आ रहा हूँ इनफाइनाइट सेट पे भी। अब एक काम करो, अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं कुछ देर के लिए ये ले लेता हूँ, चलो एक काम करो, मैं एक छोटा सेट लेता हूँ, x इज इक्वल टू ले लिया 1 2, ठीक है, 1 2 ले लिया। ये बताओ इसके पावर सेट क्या बनेंगे, पावर सेट के मेंबर क्या होंगे? 5 होगा, x 1 2 और 1 2, Yes. 1 2 मीन्स x इटसेल्फ, ठीक है। Yes, इनमें sir. से मैंने कोई कलेक्शन उठा लिया, कोई कलेक्शन उठा लिया, देखो 5 और x तो पहली रिक्वायरमेंट है टोपोलॉजी होने के लिए, ये ले लिया, ये ले लिया, एक तो कलेक्शन ले लिया। इज टाउ1 टोपोलॉजी ऑन x? अब वो चाहे मैं सिंबल फॉर्म में कोई भी ले लूं, चाहे वो 1 2 से डिनोट कर दो, चाहे ए बी से, इज टाउ1 टोपोलॉजी ऑन x? ये कलेक्शन, ये जो सबसेट लिया, ये सबसेट है कि नहीं पावर सेट का? यस सर है। इसका मेंबर 5 इसके अंदर भी है, ये x है, यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है। तो क्वेश्चन क्या है, ये टोपोलॉजी है, सो आंसर इज नो। व्हाई? नो होगा कि यस होगा? सर नो होगा। यस होगा। यस पहला Yes. कंडीशन क्या था, देखो पहला कंडीशन क्या यस था, होगा सर। फाई एंड एक्स शुड बी इन T1 होना चाहिए। है। सेकंड, आप आर्बिट्री यूनियन लेके देखो, यूनियन 5 और x का यूनियन क्या होगा, x ऑलरेडी इसके अंदर है, x और 1 का यूनियन क्या होगा, x वो भी है यहाँ पे, तो यूनियन तो कहीं फेल हो नहीं रहा। इंटरसेक्शन लेके देखो, 5 और x का इंटरसेक्शन 5 वो भी इसके अंदर है, x और 1 का इंटरसेक्शन 1 वो भी इसके अंदर है, 1 और 5 का इंटरसेक्शन, सो इट इज गोइंग टू बी टोपोलॉजी। यस सर। This is going to topology. Now look at the second one. दूसरा कलेक्शन लो, 5 x और सिर्फ सिंगलेटन 2 ले लो, इज इट अ टोपोलॉजी? यस सर। यस सर, ये भी Is Yes, sir. it to a topology on x? Set x Yes, is sir. equal to 1 2. So answer is again yes by the same logic. बात समझ में आई? यस सर। इनफैक्ट पावर सेट भी टोपोलॉजी होगा, अभी मैं आता हूं उस पे। चलो अब बिल्कुल डाउट मत रखो, अगर थोड़ा सा भी कहीं डाउट है आप पूछ लो, मैं आपसे ये बार बार बात कह रहा हूं, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं कि अब सर मुझे समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल एलिमेंट्री है वो। अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछोगे तो फिर आप क्लास, लाइव क्लासेस का फिर आपको, वैसे तो रिकॉर्डेड क्लास बहुत से पड़े हुए हैं, क्या जरूरत है लाइव क्लास में? मैं बार बार कहता हूँ कि हाँ सर एक डाउट है, टोपोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं? क्या, टोपोलॉजी क्यों स्टडी करते हैं, यानी इनका यूज क्या है? देखो रामानुजम के बॉस का नाम याद है क्या था?
जी सर, GH हार्डी। हार्डी, तो हार्डी साहब का एक वेल नोन स्टेटमेंट है, वी आर डूइंग मैथमेटिक्स फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स। ओ सर, इसका मीनिंग? हम मैथमेटिक्स कर रहे हो मैथमेटिक्स के बचाव के लिए। हालांकि उन्होंने हो सकता है एज अ जोक कहा हो, लेकिन होता क्या है ना कि जब अगर आपके पास ये इमेजिनेशन नहीं है तो कभी भी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आइडियाज जनरेट करना मैथमेटिशियंस का काम है, इंप्लीमेंट करना उसे इंजीनियर्स का काम है। ठीक है, तो अब जैसे अभी टोपोलॉजी में ना, तो वो पढ़ोगे बाद में क्लासिफिकेशंस, अभी आगे जाओगे तो टोपोलॉजी का आजकल बड़ा ज्यादा यूज है। पूरी आपकी नॉट थ्योरी और ये आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, इसमें भी क्लासिफिकेशन में टोपोलॉजी की यूज की जा रही है। ठीक है ना, अभी आप आगे पढ़ोगे वो कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस में ट्रेसेबिलिटी, और अभी आगे ये जब क्वेश्चन टोपोलॉजी वगैरह, आइडेंटिफिकेशन स्पेसेस, इवन Yes, sir. मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका फिजिक्स में यूज होता है। ठीक है, तो लेकिन Okay, हम sir. यहाँ पे उसकी प्योर जो है जो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया उसको पढ़ेंगे यहाँ पे। बहुत से एप्लीकेशन है टोपोलॉजी के, मैं कुछ पेपर शेयर कर दूंगा। अब आते हैं दोबारा उस एक पे। एक्चुअल में देखो, पिछली बार मुंक्रेस के मैंने उस बुक से पढ़ा रखा है, मैं हर बार बुक्स कोशिश करता हूँ चेंज करूँ ताकि कुछ नए नए एग्जांपल्स और कवर किए जाए। ठीक है ना, उससे क्या होता है पढ़ाने में भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये बुक है, इसमें कुछ स्टार्टिंग के लेक्चर में बता दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं बोर्ड पे तो पढ़ा नहीं सकता यहाँ पे, तो बेहतर है कि आप लोग, अच्छा इसमें टाइम बचता है क्योंकि मेनली मैं आइडियाज डिस्कशन करना चाहता हूँ। इसी चीज को मैं लिखूं उसमें टाइम वेस्ट होता है। अब आप मैच्योर हैं, बड़े क्लास में हैं, तो अब हर एक चीज के नोट्स बनाना जरूरी नहीं है। अच्छी अच्छी किताबें आप उसे पढ़ने की आदत डालें। वो सब नोट्स वगैरह का कॉन्सेप्ट होता है छोटी क्लासेस में अच्छा लगता है, बड़े क्लास में नोट्स नहीं बनाए जाते। मैं कभी भी, मेरे आज तक मेरे नोट्स नहीं है, मैं हर बार नई किताब से पढ़ाता हूँ, कुछ ना कुछ चेंज करता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक बार नोट्स बना के नोट से पढ़ने की आदत डालें तो आपकी अपनी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। ऑन स्पॉट जो सोचने वाली बात होती है ना, वो फिर आप धीमे 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 आप, ठीक है गलती होगी, हम लोग दोबारा सीखेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन नहीं गलतियां करता है। आप इन सब चीजों को दिल से निकाल दो पहले, है ना। गलतियां अगर आप यहाँ गलतियां करोगे तो आप यकीन करो आप कंपटीशन में कभी भी गलतियां नहीं करोगे। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स नहीं पूछोगे ना, तो वो गलती जाके एग्जाम में कराओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, let D script D denotes the class of all subsets of a class of all subset of X means power set, है ना। यस सर। देखो मैंने आपको, आप पहले लेक्चर में आपने नोटिस नहीं किया, मैंने आपसे एक बात कही थी कि टोपोलॉजी पढ़ने के लिए मेट्रिक स्पेसेस और सेट थ्योरी आपका रिवीजन में होना चाहिए। मैं सब कुछ सेट थ्योरी यूज कर रहा हूँ। अब आपको समझ में आ रहा है पिछले 3 क्लास से क्यों मैं सेट थ्योरी पढ़ा रहा था। हालांकि अभी भी मैंने कुछ और चीजें मुझे बतानी थी, लेकिन अब हर चीज मैं बताने लगूंगा फिर टोपोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा। बीच में जहां जहां जैसे जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा। So suppose script D denotes the class of all subsets of X. Observe that script D satisfies the axioms for a topology on X. This topology is called the discrete topology, and X together with the discrete topology, that is the pair X together with D, is called the discrete topological space, or simply a discrete space. क्या कहता है, देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी और डिस्क्रीट मेट्रिक में फर्क है, इसको उससे मत कंफ्यूज कर लेना डिस्क्रीट मेट्रिक से। यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे मैंने कहीं डिस्टेंस फंक्शन का बात नहीं की। तो अब जैसे मान लो आप यही ऐसे ले लो, x इज इक्वल टू, ठीक है x इज इक्वल टू ये ले लिया हमने समझाने के लिए, चलो 2 सिंबल ले लेते हैं, मैं a और b ले लेता हूँ। ये बताओ इसका पावर सेट क्या है, पावर सेट इसका क्या बनेगा, फाई एक्स ए पाई x सिंगलेटन a बी सिंगलटन बी सिंगलेटन b और ए बी। हाँ, और ए बी तो ऑलरेडी x है ना, तो वो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है, यही बनेगा। तो ये कह रहा है कोई भी, इसी को यहाँ पे इस बुक में स्क्रिप्ट डी कहा हुआ है, स्क्रिप्ट डी पावर सेट ऑफ एक्स को स्क्रिप्ट डी नोटेशन दिया है। तो आपको क्या करना है, क्लेम क्या है कि पावर सेट, किसी भी सबसेट का अगर पावर सेट बनाए तो वो ऑलवेज टोपोलॉजी होगा। तो देखो टोपोलॉजी के तीनों कंडीशन ही फुलफिल कर रहा है। अगर आप नोटिस करो तो पहली कंडीशन क्या है, फाई एंड एक्स शुड बी इन टी, आई मीन द पावर सेट ऑफ एक्स, है कि नहीं। यहाँ फाई और एक्स तो ऑलरेडी है ना। यस सर। तो पहला एक्सियम तो फुलफिल कर गया ना, पहला एक्सियम आपको फुलफिल कर गया। सेकंड क्या है, यूनियन ऑफ एनी मेंबर्स ऑफ टी। तो ये तो पावर सेट है ना, इनमें किसी भी दो का यूनियन लोगे, चाहे आप सिंगलेटन ए यूनियन सिंगलेटन बी लो, दैट इज इक्वल टू एक्स, वो भी पावर सेट का मेंबर है।
क्योंकि पावर सेट में तो बाय डेफिनेशन इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स। तो आप चाहे यूनियन लो चाहे इंटरसेक्शन लो, वो सब पावर सेट ऑफ एक्स के ही मेंबर होंगे, होगा कि नहीं? Yes, sir. By default going to fulfill all the condition of all the axioms of topology. And let us name this as the power set or discrete topology. Power set or the discrete topology. और obviously largest होगा, largest topology यही होगी, क्योंकि पावर सेट से बड़ा सबसेट तो कोई बने सेट तो बनेगा नहीं, पावर सेट से बड़ा कोई कलेक्शन तो होगा नहीं। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी। सर पावर सेट हमेशा टोपोलॉजी होगा सर? यस। आपको डाउट है? सर मैं डाउट है तो किसी कोई काउंटर एग्जांपल दे। भाई देखो मैथमेटिक्स में दो चीज होती है, अगर आपको डाउट है तो काउंटर एग्जांपल से क्लेम करो। अगर यहाँ किसी को डाउट है कि कोई कंडीशन फेल करेगी तीनों एग्जाम्स में से, तो मुझे एक बताओ, फिर मैं प्रूफ मैं देखता हूँ उसे। भाई किसी भी दो सेट का इंटरसेक्शन लो या यूनियन लो आएगा तो सेट ही। और पावर सेट क्या होता है? बाय डिफॉल्ट इज कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एक्स, सो इट हैज टू बी मेंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स वेदर यू टेक यूनियन और देयर इंटरसेक्शन। इस सेट थ्योरी आप लोग रिवाइज कर लें थोड़ा, इतना तो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे सेट थ्योरी में इतना पीछे रहेंगे। अच्छा एक काम करो, ये एक्स है ना, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? x इज इक्वल टू ए बी, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? मुझे कोई बताया कि इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक फाई होगा, x होगा, और क्या होगा? सिंगलेटन ए बी सिंगलेटन बी, है ना? तो ये सारे इसके सबसेट्स हैं, x के सबसेट्स हैं। दिस इज सबसेट्स ऑफ x, दिस वन इज आल्सो सबसेट ऑफ x, दिस वन इज। अच्छा ये नोटेशन मैं यूज करता हूँ ना, मुंक्रिस का ये नोटेशन इसके लिए होता है, ये मैं बार बार बता दूं। तो आप कौन सी बुक फॉलो करें इंपॉर्टेंट, कभी कभी इस तरह लिख देने का मतलब ये इसके लिए होता है। अगर प्रॉपर सबसेट होगा तो ये नोटेशन मैं फॉलो करूंगा, ठीक है? तो दिस इज सबसेट्स ऑफ x, अगेन दिस वन इज सबसेट ऑफ x, और इन सबसेट्स का सारे पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन ही तो है ये पावर सेट ऑफ x। देखो इसके अंदर क्या है, फाई एक्स ए बी। तो पावर सेट का हर एक मेंबर क्या है? मैं ये भी तो कह सकता हूँ ये कलेक्शन, इसमें इसके जो मेंबर्स हैं बेसिकली दे आर सबसेट्स ऑफ x। यस सर। दे आर सबसेट्स ऑफ x। अब आओ, अब एक दूसरी टोपोलॉजी बनाते हैं किसी सेट पे, कुछ स्टैंडर्ड टोपोलॉजी उसको हम लोग देखेंगे, जिनके रेस्पेक्ट हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। जो अभी आप सब ओपन क्लोज्ड और इंटीरियर पॉइंट ये सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आओ ना, वो सब टोपोलॉजी में कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे। अब दूसरी, तो ये डिस्क्रीट, या इसको डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं या पावर सेट कहते हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट टोपोलॉजी, क्योंकि लार्जेस्ट कलेक्शन होगा, पावर सेट से बड़ा कोई कलेक्शन होता नहीं। सो डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी प्रेजेंट ऑन एनी सेट। तो ये टोपोलॉजी बाय डिफॉल्ट हर सेट पे होता है। दूसरा सबसे छोटी टोपोलॉजी जो होती है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? आप सिर्फ सेट से ये ले लो, फुल स्पेस एक्स और फाई। तो देखो ये हमेशा टोपोलॉजी बनाएगा, क्यों? क्योंकि फाई और एक्स ऑलरेडी पहला एक्सियम कंप्लीट हो गया। फाई यूनियन एक्स एक्स वो भी है इसके अंदर, एंड फाई इंटरसेक्शन एक्स वो भी इसका मेंबर है। सो दिस इज गोइंग टू बी टोपोलॉजी, एंड दिस इज सेड टू बी द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, या इसको इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, तो दो टोपोलॉजी हमेशा किसी भी सेट पे मिल जाएंगी, एक तो आपका इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी और एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी। ये दो ट्रिवियल टोपोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा कोई भी सेट होगा उस पे ये दो टोपोलॉजी ऑलवेज मिलेंगे। अब कोई नॉन ट्रिवियल टोपोलॉजी वो देखेंगे। तो पहले यहां तक तो क्लियर हुआ? Yes, sir. अब मैं और एग्जांपल पे आने से पहले अभी प्रूफ, पहले कुछ एग्जांपल से समझ लो चीजें, उसके बाद हम प्रूफ पे आएंगे, ठीक है ना? जैसे थोड़ा सा अभी आपको और मैं कुछ करा दूं ताकि आपको जो डर है वो दूर हो जाए। देखो यहाँ पे जैसे दो टोपोलॉजीज हैं T1 T2, तो उनका यूनियन इंटरसेक्शन ऑलवेज टोपोलॉजी होगा। अच्छा इंटरसेक्शन यूनियन पे बाद में आएंगे, पहले एक काम करो, मैं कुछ और एग्जांपल जरा पहले टोपोलॉजी के दे दूं, उसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं।
जैसे मान लो ये ले लिया, ये सब आप लोग खुद से पढ़ जाएंगे, मैंने एक एक एग्जांपल सबके करा दिए, जहां पे मैं नया एग्जांपल कराऊंगा। अब देखो ये तो ए बी सी डी इसका पावर सेट बना, उससे कलेक्शन ले लिया। आप क्ले में क्या स्क्रिप्ट टाउन टोपोलॉजी है, तो आप बैठ के ये सब चेक कर लो। एक भी अगर काउंटर एग्जांपल मिल गया, जैसे ए बी और ए सी है इसके अंदर, देखो ए बी और ए सी है, लेकिन इनका अगर आप यूनियन लो तो वो आएगा ए बी सी, वो इसके अंदर कहीं नहीं है, वो इसके अंदर कहीं नहीं है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी टोपोलॉजी, ये पहला टोपोलॉजी नहीं होगा। तो इस तरह आप देख सकते हो। स्क्रिप्ट टी टू भी टोपोलॉजी नहीं है, क्योंकि ए बी सी और ए बी डी तो है इसके अंदर स्क्रिप्ट टी टू में, लेकिन उनका इंटरसेक्शन जो है वो ए बी आएगा और ए बी इसके अंदर कहीं भी नहीं है ना, तो ये भी टोपोलॉजी नहीं होगा। ठीक है, स्क्रिप्ट टी थ्री जो सारे एग्जाम सेटिस्फाई करो, सो इट इज गोइंग टू बी टोपोलॉजी। अब आते हैं क्लोज सेट पे। क्लोज सेट किसे कहते हैं? सपोज एक्स पे कोई टोपोलॉजी दे रही है। अच्छा, जब भी मैं कहूं ना कोई सेट एक्स, तो वी विल अज्यूम दैट इट इज गोइंग टू बी नॉन एम्प्टी। आई एम टॉकिंग ऑन अ नॉन एम्प्टी सेट। Now we know what we mean by topology. Now suppose on this set X is equal with the topology script T, है ना? तो X topology, या सिंपली इसको X भी लिखते हैं। X is a topological space. X means on X we have the topology script T. So any subset A of X is called closed set. A subset A of X is called a closed set if and only if its complement is an open set. तो क्या कह रहा है? टोपोलॉजी में कैसे पहचाने कोई सेट क्लोज्ड है कि नहीं? जस्ट लुक एट इट्स कॉम्प्लीमेंट, वेदर इट्स कॉम्प्लीमेंट इज मेंबर ऑफ द स्क्रिप्ट टी। अगर इसका कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी का मेंबर है, दिस मींस सेट इज क्लोज्ड। जैसे मैं एग्जांपल समझा दूं, ये मान लो ये टोपोलॉजी आपको दे रखी है, इस सेट पे x इक्वल टू ए बी सी डी पे ये टोपोलॉजी दे। टोपोलॉजी दे रखने का मतलब हुआ कि ये टोपोलॉजी के तीनों एग्जाम्स फुलफिल कर रहा होगा। चाहो तो चेक भी कर लो, लेकिन जब दे रखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं है। x फाई देखो अंदर है, अब इनमें से किसी का यूनियन ले लो, वो सब इसी में मिल जाएंगे। और फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये तो सेट ही फाइनाइट है, तो सिंपली इंटरसेक्शन कह दो। तो ये, और आपको बताया था वन सेट्स अ टोपोलॉजी, एवरी मेंबर ऑफ दिस इज कॉल्ड एज अ ओपन सेट, है ना? एक बार ये टोपोलॉजी हो गया तो इसके हर मेंबर को हम क्या कहेंगे? ओपन सेट। Open set. ओपन सेट। नाउ जस्ट लुक एट इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या है? फाई। फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक्स। इस सेट में एक्स में देखो ए का कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है? ए को छोड़ के क्या बच गया? बी सी डी ई, ये दिख दिया। सी डी का कॉम्प्लीमेंट कितना है? ए बी ई। सी डी का कॉम्प्लीमेंट इसमें देखो ए बी सी डी ई में, तो सी और डी को हटा दो, क्या बच गया? ए बी ई। ए सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या है? बी ई। बी सी डी ई का कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए। तो फाई क्लोज्ड है। क्यों फाई क्लोज्ड है? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट एक्स स्क्रिप्ट टी का मेंबर है। उसी तरह एक्स जो है, देखो यहां इस वाले डेफिनेशन क्या मिला? एक्स और फाई ओपन है, क्योंकि टोपोलॉजी के मेंबर हमेशा ओपन कहलाते हैं, और इनका कॉम्प्लीमेंट ये क्लोज्ड है। सो फाई एंड एक्स आर ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। ये डेफिनेशन हर जगह ट्रू है। अ सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एंड अ सेट इज सेड टू बी ओपन इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज क्लोज्ड। बी सी डी ई ये क्लोज सेट है। क्यों क्लोज सेट है? क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट देखो, इसका कॉम्प्लीमेंट बी सी डी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंगलेटन ए, एंड दैट इज मेंबर ऑफ स्क्रिप्ट टी। तो ये तरीका होता है क्लोज सेट देखने का। अब जैसे आपसे यही पूछा जाए, इज सिंगलेटन बी क्लोज्ड? क्लोज्ड इन क्लोज्ड, इज सिंगलेटन बी क्लोज्ड? मैं इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट बात कर रहा हूं। क्या सिंगलेटन बी क्लोज्ड है? So you have to look at its complement. क्या इसका complement open है? सिंगलेटन बी का complement यहाँ क्या होगा? ए बी सी डी में ए सी D D Now E. check whether this is member of T, No. No sir। है ना? So Yes, since this is not the member of script T, hence singleton B is not closed. अब देखो यहाँ एक्सेप्शंस कितने ज्यादा। अभी आपने मेट्रिक स्पेस में पढ़ा होगा, मेट्रिक स्पेस में कि एवरी फाइनाइट सेट इज अ क्लोज्ड। अगर आपको मेट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टीज याद है तो वहां आपने पढ़ा होगा एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। लेकिन टोपोलॉजी में एक्सेप्शन देखो, बीइंग अ फाइनाइट सेट इट मे बी क्लोज्ड, इट मे नॉट बी क्लोज्ड। तो मैंने आपको स्टार्टिंग के लेक्चर में कहा था जब आप मेट्रिक से टोपोलॉजी की तरफ मूव करें तो आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिलेंगे। हो सकता है जो आपने रिजल्ट मेट्रिक में पढ़े वो टोपोलॉजी में ट्रू ना हो। तो चलो हम एक एक करके वो सारे एक्सेप्शन डिस्कस में करूंगा, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, अब दोबारा इस डेफिनेशन पे आओ। कहीं भी इस डेफिनेशन में मैंने आपको ये बताओ, कहीं भी जैसे मेट्रिक में क्या था? मेट्रिक में अगर आप मेट्रिक स्पेस की बात याद रखो तो एक सेट दिया होता था, नॉन एम्प्टी सेट,
और उस पर एक डिस्टेंस फंक्शन होता था। इस डिस्टेंस फंक्शन का क्या एडवांटेज था कि इस सेट के हर दो मेंबर के बीच में आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, लेकिन यहां पे कहीं रोल मैंने डिस्टेंस फंक्शन का नहीं दिखाया। Yes, sir. समझ आई? वो अलग बात है कि डिस्टेंस फंक्शन के हेल्प से मैं ओपन बॉल्स बनाऊंगा, ओपन बॉल्स का यूनियन ओपन सेट होता है, उनका कलेक्शन लेके टोपोलॉजी जनरेट किया जा सकता है, लेकिन टोपोलॉजी विदाउट हेल्प ऑफ डिस्टेंस फंक्शन भी हो सकता है। जैसे देखो इस सेट, इस डेफिनेशन में मैंने कहीं भी डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं है, तो ये दोनों में डिफरेंस आप समझो। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। टोपोलॉजी से, मैट्रिक्स से टोपोलॉजी जनरेट की जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक टोपोलॉजी मैट्रिक्स से जनरेट हो। वो बेसिकली वो मेट्राइजेबिलिटी की कंडीशन, अगर कोई ऐसा मैट्रिक है जो टोपोलॉजी जनरेट कर दे, सो दैट टोपोलॉजी इज कॉल्ड एज मेट्राइजेबल। तो अभी वो यूरिशंस लेमा वगैरह पढ़ेंगे, वो बात की बात है, लेकिन मैं यहाँ पे डिफरेंस दोनों में बता रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे अगर आप देखो तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको यहाँ पे जैसे मैंने देखो ये टोपोलॉजी बनाई थी, है ना, ये टोपोलॉजी आपको बनाई थी यहाँ पे इस सेट 1-2 पे, इस सेट 1-2 पे मैंने दो टोपोलॉजी बनाई। इस सेट 1-2 पे एक तो ये स्क्रिप्ट T1 और स्क्रिप्ट 2 दो टोपोलॉजीज बनाई। क्या यहाँ कहीं रोल है डिस्टेंस फंक्शन का? कहीं भी मैंने नहीं, सिर्फ पावर सेट लिया, पावर सेट से कुछ कलेक्शन लिया, वो क्लेम किया वेदर दैट इज टोपोलॉजी और नॉट। ठीक है? Yes, sir. टोपोलॉजी में कहीं डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं है, टोपोलॉजी में कहीं डिस्टेंस फंक्शन का रोल नहीं है। वो अलग बात है कि अगर डिस्टेंस फंक्शन से टोपोलॉजी जनरेट की जा सकती है, डिस्टेंस फंक्शन इन द सेंस मेट्रिक में बात कर रहा हूं। अच्छा, दूसरी बात यह कि जैसे इस तरह की चीजें अगर मैं कहूं कि ठीक है, अब इसको दूसरा देखते हैं। तो पहले आपको कुछ मैं ऐसे जनरल एग्जांपल करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा डेफिनेशन आपको समझ में आने लगे, और फिर उसके बाद मैं अभी यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इंटरेस्टिंग केस वो होंगे जब इनफाइनाइट सेट आएगा और वहां पे जब हम चीजें डील करेंगे। तो यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? No, sir. और सर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर यहाँ टी सर मतलब पावर सेट ऑफ एक्स लिख सकते हैं सर, ये टी पुल पावर सेट ऑफ एक्स किसको? टी को सर, ये सर नहीं, ये टी सबसेट है पावर सेट का ना, ये टी जो होगा ये सबसेट है पावर सेट का। पावर सेट भी अपने आप में टोपोलॉजी बनाता है, बट दैट इज वन ऑफ द पर्टिकुलर टोपोलॉजी कॉल्ड एज डिस्क्रीट और पावर से क्या कहते हो, लार्जेस्ट टोपोलॉजी। लेकिन सर हाँ बताएं। मैट्रिक स्पेस का ही जो ये एडवांस मतलब टॉपिक है टोपोलॉजी, तो मैट्रिक स्पेस के अंदर तो हम लोग डिस्टेंस का बात करते हैं, तो फिर टोपोलॉजी के अंदर फिर डिस्टेंस का बात कर सकते हैं। एक्चुअली मैट्रिक स्पेस देखो टोपोलॉजी का पर्टिकुलर केस है ना। अभी मैं अब जो आगे पढ़ूंगा, जब मैं बेसिस वगैरह पढ़ाऊंगा ना, बेसिस जो टोपोलॉजी जनरेट करती है, तो अगर उस बेसिस को अगर आप ओपन बॉल से रिप्लेस कर दोगे, सो यू विल गेट ऑल कंडीशंस ऑफ मैट्रिक, है ना। तो अभी रुक जाओ, एक एक स्टेप करके चलने दो, एक ही साथ में बता दूंगा, सब कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वजह से मैं ब्रेक करके पढ़ा रहा हूं। मैं भी आपको दोनों में डिफरेंस भी बता दूंगा, और कुछ टोपोलॉजी से, आई मीन मैट्रिक से टोपोलॉजी जनरेट करके भी दिखा दूंगा कैसे जनरेट होता है। लेकिन उसके लिए भी आप 5-6 क्लास वेट करो, फिर दोनों में कंपेयर कराऊंगा। जैसा मैट्रिक तो जानते हो, पहले टोपोलॉजी की भी तो प्रॉपर्टी जान लो, तब तो दोनों में कंपेयर करोगे। ठीक है ना? आपका क्वेश्चन अच्छा है। तो मैं यही बता रहा हूं कि यहाँ पे मैट्रिक में जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा हाँ, तो जैसे यही अगर ठीक है, ये जो अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया था ना, ये जो इस एग्जांपल, ठीक है, ये सेट दिया, उस पे मैंने ये पावर सेट बनाया, और x टुगेदर विथ T1 इज अ टोपोलॉजी, अगर मैं अब आपसे ये पूछूं कि डिस्टेंस बिटवीन
1 and 2 कितना है ये बताओ। x ये जो सेट है 1 2, इसमें 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है विथ रिस्पेक्ट टू T1 टोपोलॉजी? एनीवन? 1 है सर। 1 सर, 1 यूनिट। देखो आंसर 1 आया, ठीक है ना, 1 यूनिट। तो अब ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि आपको इस सेट पे सिर्फ टोपोलॉजी दी हुई, कहीं भी डिस्टेंस फंक्शन नहीं दिया, तो वहां पे हम बात नहीं करेंगे अनलेस डिस्टेंस फंक्शन दे रखा हो। बात समझो, यही सब लोग गलतियां करते हो। ये आप ऐसे समझो कि आपके पास एक टूल है सिर्फ टोपोलॉजी, उसमें क्या है ओपन सेट्स का कलेक्शन, सम ऑफ द ओपन सेट सबसेट्स का कलेक्शन, और आपके पास कोई टूल नहीं है, तो आप कैसे डिस्टेंस मेजर कर लोगे अनलेस ये डिस्टेंस फंक्शन दे रखा हो, मेंशन हो इस पे। बात समझ में आई? जैसे आपने वो देखा होगा ना, जैसे ऐसे काम करो, सेट ऑफ कोई सेट एक्स ले लो, उसमें मैंने टोपोलॉजी दे दी, मैं कहूं कि और लैम्डा कुछ रियल नंबर ले लो, मैं कहूं कि ये क्या होगा लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या देगा? लैम्डा मान लो 0 1 से ले लूं, और फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंगिंग टू एक्स, ये क्या देगा? एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइन देगा लाइन है सर। ये एक्स हो गया, ये वाई होगा, इनको लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। चलिए पूरी क्लास ने ये आंसर दिया लाइन सेगमेंट, बट क्वेश्चन इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड अनलेस एक्स इज अ वेक्टर स्पेस। भाई टोपोलॉजी तो आप किसी भी नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन करते हो ना, और सेट जरूरी थोड़ा ना कि वेक्टर स्पेस हो। वेक्टर स्पेस पे तो ये कंडीशंस होगा ना, उस पे ये ऑपरेशंस होते हैं, और अंडरलाइन फील्ड से स्केलर्स आते हैं v ओवर f। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये आपने कैसे, यहाँ पे देखो यही सब चीजें ना, अब आप बिल्कुल एक आपको बस ये नोटेशन देखा और आपने तुरंत बोल दिया सर ये लाइन सेगमेंट। आपने ये नहीं देखा कि लैम्डा और एक्स के बीच में ये स्केलर और ये जो वेक्टर है, जो वेक्टर स्पेस का मेंबर, अगर ये वेक्टर स्पेस हुआ तब तो ये ऑपरेशन इनटू और ये प्लस ये डिफाइंड है यहाँ पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन। लेकिन आर्बिट्रेरी सेट पे मैं इसकी बात थोड़ी नहीं कर सकता हमेशा। अगर आपका ये सेट इटसेल्फ वेक्टर स्पेस हो गया तब तो ये, तो यहाँ पे क्या मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। और अगर मेट्रिक स्पेस ले लो और मान लो लैम्डा कोई रियल नंबर है, तो भी यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, क्योंकि मेट्रिक स्पेस भी इन जनरल सेट पे डिफाइन होता है। इन जनरल ये सेट होता है, सेट पे डिफाइन होता है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई। तो ये जो यहाँ वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस है ना, ये मिसिंग होते हैं। वेक्टर स्पेस अगर एक्स वेक्टर स्पेस हो गया तब तो ठीक है, ये समझने की कोशिश करो। हर एक जगह नहीं बोल देते, बस ये नोटेशन देखते ही कि क्या है ये लाइन सेगमेंट है, ये यहाँ पे मीनिंगलेस है, वेक्टर स्पेस में मीनिंगलेस है, सॉरी टोपोलॉजी में मीनिंगलेस है, मेट्रिक स्पेस में इन जनरल ये मीनिंगलेस है, अनलेस योर मेट्रिक इज डिफाइंड ऑन अ वेक्टर स्पेस। हाँ अगर वेक्टर स्पेस है, आपका सेट वेक्टर स्पेस है, तो वहां पे वो अलग बात है कि उस पे ये ऑपरेशन प्लस वाला ये ऑपरेशन ये होता है, ये ऑपरेशन वहां पे, और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी होता है यहाँ पे, तो ये लैम्डा इंटू एक्स सेंस बनाता है, 1 माइनस लैम्डा इंटू वाई सेंस बनाएगा, और फिर दोनों का वेक्टर एडिशन। तो हर जगह हर चीज नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा ना आपके पास क्या टूल्स हैं वहां पे। बात समझ आई आप लोगों को? यस सर। अब जैसे मान लो आप अच्छा फंक्शनल एनालिसिस आपने पढ़ रहे होंगे ना, फंक्शनल एनालिसिस क्लासेस स्टार्ट हो गई ना फंक्शनल एनालिसिस की? यस सर, फर्स्ट क्लास हुई है। हाँ, तो वहां पे आप देखोगे ना फंक्शनल एनालिसिस में जो नॉर्म, हम नॉर्म पढ़ते हो, नॉर्म और नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस या नॉर्म लीनियर स्पेस और सिंपली लीनियर। अब क्या करते हैं वहां पे कि हम एक वेक्टर स्पेस लेते हैं, वेक्टर स्पेस पे ऑलरेडी ये प्लस और डॉट ऑपरेशंस होते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन, और साथ में उसपे एक डिस्टेंस फंक्शन ले आते हैं, थोड़ा सा वो चाहो तो इसको आप डी भी कह सकते हो। ये नॉर्म जो होता है ये आपका डी इंड्यूस कर देगा, लेकिन उस नोटेशन से अलग करने के लिए हम एक ये इस तरह नोटेशन दे देते हैं। अब देखो इस पे नॉर्म से आपको डिस्टेंस फंक्शन मेजर हो जाएगा। तो नॉर्म जो होता है ना, नॉर्म की मैपिंग जो होती है वो वेक्टर स्पेस टू जो भी अंडरलाइन फील्ड होगा, आर या सी जो भी होगा, ये होता है। तो ये नॉर्म का डोमेन वेक्टर स्पेस होता है, तो वहां पे ये सेंस बनाता है लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, क्योंकि नॉर्म स्पेस का डोमेन क्या होता है, नॉर्म स्पेस का डोमेन हमेशा वेक्टर स्पेस होता है,
अब वेक्टर स्पेस में मैं इस तरह की बात कर सकता हूँ कि लैम्डा वी बिलोंगिंग टू फील्ड है, अंडरलाइंग फील्ड है, और ये वहां पे ये चीज सेंस बना लेगा, वहां तो ठीक है। लेकिन मेट्रिक स्पेस में इन जनरल हम इस तरह की चीजों की बात नहीं कर सकते मेट्रिक स्पेस में, और ना ही हम टोपोलॉजी में बात कर सकते हैं। इसलिए देखो कि टोपोलॉजी में आर्बिट्री टोपोलॉजिकल स्पेस में हम बाउंडेडनेस की बात नहीं करते, जबकि मेट्रिक में कोई सेट बाउंडेड है कि नहीं हमेशा बात करेंगे। एक एक करके मैं ये चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आपको सब में कंपैरिजन बता रहा हूँ कि पढ़ते वक्त आप ये नहीं कि सिर्फ कंडीशन रट लिया। मेट्रिक में मेट्रिक जो होती है डी, ये जो मेट्रिक होती है कहां से कहां डिफाइन होती है? डी इज अ मेट्रिक फ्रॉम एक्स क्रॉस एक्स टू 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, या आर प्लस कह लो या आर कह लो, और फिर पहली कंडीशन लगा दोगे तो वो यही आ जाएगा, रेंज होगा। तो ये दो सेट एक्स और वाई के बीच में, तो यहाँ मेट्रिक स्पेस में एक्स कोई सेट है। अब वेक्टर, हर वेक्टर स्पेस सेट होता है, लेकिन सेट वेक्टर स्पेस जरूरी नहीं है, क्योंकि वेक्टर स्पेस के लिए वो 10 कंडीशन जो आप पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा वो फुलफिल होने चाहिए, उस पे 2 ऑपरेशंस होने चाहिए। तो कहीं भी कुछ भी नहीं, आप पहले कंपेयर करोगे कि वेक्टर स्पेस है, डोमेन मेरा क्या वेक्टर स्पेस है कि मेट्रिक स्पेस है कि टोपोलॉजी है। बात में समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, थोड़ा सा ना मैंने रफ एक स्केच आपको दिया है ताकि आप पढ़ते वक्त इन चीजों का ख्याल करो कि बात किस पे हो रही है। मान लो इंटरव्यू में आप अपीयर हो रहे हो, वहां पे पूछ रहा है लैम्डा एक्स प्लस 1, में आपने सीधे रटा हुआ बोल दिया, अब वो मालूम चला टोपोलॉजिकल स्पेस या मेट्रिक स्पेस में कह रहा है, जहां वो मीनिंगलेस है। तो आपको पहले ये चीजें भी समझना है कि क्या वो टूल्स वहां है भी कि नहीं। अब यहाँ वो वेक्टर स्पेस ऑपरेशन, ये प्लस है, यहाँ पे ये प्लस दे रखा है, ये डॉट यहाँ पे जो छुपा वो दे रखा है, तब यहाँ पे हम इनके बीच में डिस्टेंस भी फंक्शनल, ये तो नॉर्म स्पेस में ये एडवांटेज है, एक तो डोमेन वेक्टर स्पेस है, आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एडिशन की बात कर सकते हो, और साथ में डिस्टेंस फंक्शन भी है। मेट्रिक स्पेस पे सेट पे सिर्फ डिस्टेंस फंक्शन है, वेक्टर स्पेस ऑपरेशन मिसिंग है। मतलब इन जनरल में बात कर रहा हूँ, वो अलग बात है x इक्वल टू आर R2 या कोई वेक्टर स्पेस ले लिया तो वहां पे भी दोबारा सेंस बना लेगा, लेकिन आप इन जनरल ट्रू नहीं होती ये चीजें। उसी तरह टोपोलॉजी में आपको सेट पे उसके सिर्फ एक सबसेट्स का कलेक्शन दे रखा है, वहां पे कहीं भी डिस्टेंस, अनलेस डिस्टेंस फंक्शन दिया हो या डिस्टेंस फंक्शन से टोपोलॉजी जनरेट करने वाली दी हुई हो, हम टोपोलॉजी में इन जनरल हम बाउंडेडनेस की बात या मतलब डिस्टेंस फंक्शन की बात नहीं करते। तो ठीक है, आपका क्लास आज मैं यहीं पे रोकता हूं, और एक मैंने रफ स्केच आपको दे दिया ताकि आप कंपेयर करना सीखो। ये सब ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको स्टार्टिंग में कंपेयर करना चाहिए, वरना आपको आपके लिए मेट्रिक आप पास होकर के बहुत अच्छे परसेंटेज से चले जाओगे और जिंदगी भर आपको मेट्रिक स्पेस और वेक्टर स्पेस और टोपोलॉजी में डेफिनेशन क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना, बहुत फंडामेंटल चीजें हैं, लेकिन कंपेयर करो, करना सीखो। यस सर। ठीक है, चीजें टफ नहीं है, लेकिन पढ़ने का एक वे होता है, एनालिसिस करना, डिस्कशन करना, सीखते तो इसी से है ना, सब लोग ऐसे सीखते हैं। और डाउट्स इससे मत गड़बड़ाओ कि सर क्या कहेंगे और क्लास के साथी हंसेंगे, और जिसके दिमाग में ये आ गया, जिसके दिल में, वो फिर सीख नहीं पाएगा। तो फ्रैंकली जो भी आपको आ रहा है डाउट्स पूछो, जितना मुझे आता पढ़ा दो, नहीं तो कोई नया क्वेश्चन होगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा। क्यों अपने ऊपर इतना लोड लेते हो, क्या हो जाएगा? छोटे छोटे डाउट आप पूछना सीखो, अगर अच्छे मैथमेटिशियन बनना आपस में डिस्कस करना सीखो, और साथ में छोटे छोटे डाउट तक को क्लियर करना सीखो। यही टूल्स होते हैं सीखने का। बाकी वो आपके परसेंटेज से, कोई किसी के 90s भी आ रहे हैं तो कंपटीशन में तो कुछ नहीं होता कि आपके 90% आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, मैटर नहीं करता। यस सर। वो कुछ देर के लिए, और बहुत अच्छे परसेंटेज होते हैं ना, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी उसी लेवल से शुरू होते हैं। इसलिए कम से कम जो मार्क्स आप पा रहे हो वो आप जस्टिफाई करो। होता है बहुत 55% मार्क्स पाने वाले लड़कों को बहुत अच्छे इंटरव्यू होते हैं, इवन हम लोग क्लास में लेते हैं, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। सब कुछ परसेंटेज नहीं, ठीक है, फॉर्म भरने पर मिनिमम होना चाहिए, और कहीं के रोल होता है परसेंटेज का, लेकिन सब कुछ परसेंटेज नहीं है। ठीक है, मैं क्लास एंड करता हूँ। किसी कोई डाउट तो नहीं है, कोई क्वेरी तो थैंक यू नहीं? सर। नो सर। Okay. थैंक यू सर। Thank you. ओके सर। Thank you, sir.